So today we are going to study about classical theory of interest. For this we have to study the classical view on the determination of interest, like how the interest rate is determined. So what is interest? First of all, so the interest is the price paid for the use of capital, like like the price we pay for use of any good and services. The interest is the price paid for use of capital only. Okay, we are using capital, so that is why we are paying price for it. So according to classical economists, interest is a reward for saving, abstinence and waiting. We'll study about it further. So thus interest is a real phenomenon, not a monetary one. So the key classical economists associated the with this concept are Adam Smith, David Ricardo, J.S. Mill, Alfred Marshall, A.C. Piku, and Irving Fisher and Nassau Jr. Senior. Sorry. So these are all classical economists. Okay, you have to remember that. Okay. So according to them, the interest is the reward for parting with current consumption or the price for the use of capital. Okay, so this line is important in here. Okay, and how yeah, okay, so this theory has different alternative names. So these is also called a real theory and saving investment theory and capital theory of interest. Why saving investment theory? Because the interest rate is determined by the forces of saving and investment. Okay, now why real theory? The real theory because it ignores the money's role as a store of value and treat it merely as a medium of exchange. So that is why it is known as the real theory. Now why capital theory? Because is interest is the price paid for the use of capital only. So I hope you understood why this theory is known as the three different names, है ना? The alternative name and the meaning behind these alternative names. Okay, so according to this theory, interest is a real phenomenon. Okay, and the rate of interest is determined by the real factors such as supply and demand for capital under perfect competition. We'll study about the assumptions further. Now what governs supply of capital? Supply of capital is governed by the habit of thrift or saving only. Okay, now which means that the capital is supplied only by saving, and this saving can happen in household sector, government sector or any other sector, but the only medium of supply of capital is through savings. And for demand of capital, it is in the demand of capital is being made by the investment. Okay, now why people are saving? Why people are wanting to supply capital? Because interest is the reward for their waiting and abstinence. And why people are demanding capital? Because capital works to increase the productivity. Okay, which means the capital has productivity, so this productivity will increase the benefit or the. So now let's look into the assumptions of this theory. Okay, so the first assumption is perfect competition exists in the factor market. Why the sorry, why there is a perfect competition? So we have studied that the classical theory of income and employment also has particular this assumption. Okay, that there is perfect competition. So what happens in perfect competition? As you remember, there are many features of perfect competition, like there are many buyers and many sellers. Both buyers and sellers have a perfect knowledge. No firm is price maker. They are price takers, and they sell homogeneous products. Okay, so there are many features you can state in perfect competition. I have only written the why this assumption is made. So the equilibrium rate of interest is determined by the competitive forces of demand and supply in the capital. So this is important here. Why perfect competition? Because there is no
there are many features of perfect competition that governs that there is competition over in the market. Okay, like in the case of monopoly, there would be only one firm, है ना. So in perfect competition there is competitive markets, and the rate of interest is determined by the competitive forces of demand and supply of capital market. So here you can say the interest rate would be flexible as a result of the perfect competition. Okay, it's a result of assuming that there is a perfect competition, so the interest rate is flexible, which means that it freely moves to whatever level the demand and supply force dictate. Suppose the supply of capital is more than its demand, the rate would fall, है ना, leading to fall in the tendency of saving, thus demand and supply would be equal. And suppose demand of capital is more than its supply, so the rate of interest would be high, है ना, and thus more people would start saving, so thus demand and supply would be equal. So as a result of perfect assuming the making assumption of the perfect competition, the interest rate is flexible because it is being determined by the competitive forces of demand and supply. Thus it can go move to whatever level the demand and supply dictates. Okay, I hope it is clear now. Now the second assumption is the theory assumes full employment of resources. So let's study about the theory assumes full employment of resources. देखो, हम सेविंग करेंगे तो इट विल इन्वॉल्व सेक्रीफाइसेस एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम द और पोस्टपोनिंग दी प्रेजेंट कंजम्पशन. मतलब अगर मैं 100 रुपये कमा रही हूँ और मैं सेव करना चाह रही हूँ तो सेव मेरा क्या रहेगा, सेक्रीफाइस लेगा, है ना. मैं 100 रुपये पूरे खर्च नहीं कर पाऊँगी, है ना. मान लो मैं 20 रुपये की सेविंग कर रही हूँ तो ये 20 रुपये क्या है, मेरा सेक्रीफाइस है. ये मेरा एब्सटेन कर रही हूँ, मैं अपने पोस्टपोन कर रही हूँ प्रेजेंट कंजम्पशन को. ठीक है, तो इस प्रेजेंट कंजम्पशन और इस मेरे सेक्रीफाइस के लिए इंटरेस्ट क्या है, मेरा रिवॉर्ड है. ठीक है, अब अगर रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड रहेंगे बेटा, तभी ऐसा होएगा कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अगर मुझे मिलेगा तो मुझे ये इंड्यूस करेगा ताकि मैं और सेव करूं और एब्सटेन कर सकूं, है ना, कंजम्पशन से. ठीक है, अब देखो क्या होता है, हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों लेके चल रहे हैं. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में क्या होता है कि आपका इनकम लेवल क्या हो जाता है, कांस्टेंट रहता है. मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इनकम एंड आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होते, है ना, और कांस्टेंट हो जाते हैं. जैसे हमने पढ़ा था कि आउटपुट क्या होता है, आउटपुट क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमी क्या कर रही है, अपने काम ऑपरेट किस में कर रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट में कर रही है. तो आपका इनकम और एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं होगा और क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. अब मान लो आउटपुट तुम इंक्रीज कर ही नहीं पा रहे हो, तो मतलब पीपल की जो इनकम है वो भी चेंज नहीं हो रही है. ठीक है, अब चेंज नहीं हो रही मतलब मेरे को इनकम मिल रही 100 रुपये ही मिल रहे हैं और मैं कर रही हूँ सेविंग मात्र 5 रुपये की. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो बढ़ गया, मतलब डिमांड ऑफ इन्वेस्ट कैपिटल बढ़ गई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, बढ़ गया, हो गया मान लो 10 से 20% हो गया. अब जहाँ मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलता, अब मुझे वहाँ 20%, मतलब डबल मिल रहा है. तो मैं क्या करूँगी कि यार मैं सोचूंगी यार चलो मैं अभी 5 रुपये बस सेव करती थी, अब मैं 10 रुपये सेव करने लगती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, दुगुना इंटरेस्ट मिलेगा. तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट में हैं और फुल एम्प्लॉयमेंट में आउटपुट मतलब इनकम आपकी चेंज नहीं होगी. अब मान लो अगर इनकम चेंज होती तो अगर मेरी 100 से 200 हो जाती तो मैं 5 रुपये से 10 रुपये कंजम्पशन कर लेती, मतलब सेविंग कर लेती. लेकिन हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं कि पीपल की इनकम चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ IR इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से हम देख रहे हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क आएगा. आपको ये लाइन बहुत याद रखनी पड़ेगी कि हाउ इंटरेस्ट रेट इज़ अफेक्टिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. दैट्स वाई दिस फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज़ एज्यूम्ड, है ना, क्योंकि इसमें क्या होएगा आपका, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज में क्या होएगा आपका कि आपकी इनकम चेंज नहीं होगी. इनकम चेंज नहीं होगी तो सिर्फ क्या करेगा, मान लो इनकम चेंज हो जाती तो मेरी इनकम कम हो जाती तो मैं सेविंग कम कर लेती, मेरी इनकम बढ़ जाती तो मैं सेविंग ज़्यादा करने लगती. लेकिन इनकम आपकी सिंस चेंज नहीं होगी तो आपका सेविंग करने का जो मोटिव है वो चेंज कब होएगा, ओनली तब होएगा जब आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा. समझ में आ रही बात, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही क्या है, रिवॉर्ड है आपका. अगर मैं आपको 10 चॉकलेट दूँ और बोलूँ कि
आपको 90% लाना है तो आप लाओगे। फिर मैं अगर बोलूँ कि यार अब मैं आपको 20 चॉकलेट दूंगी, है ना, अब आपको लाना है तो अब आप और लाने की कोशिश करोगे। मतलब ऐसा एग्जाम्पल है, समझ लो, अपन बच्चे के साथ नहीं करते ऐसा, वैसे ही चीज़ को एक ही टाइम पे पढ़ने के लिए हमने क्या किया कि इनकम का इफेक्ट निल करने के लिए हमने माना कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब सिंस इनकम और आउटपुट चेंज नहीं हो रहे तो आपकी सेविंग की हैबिट किससे चेंज होएगी? ओनली व्हेन इंटरेस्ट रेट इज चेंजिंग। अच्छा देखो, अभी हमने दो अजम्पशन पढ़े। एक तो हमने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन। कहाँ कहाँ परफेक्ट कंपटीशन रहेगा? आपके फैक्टर और कैपिटल मार्केट में। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन क्या बताएगा आपको? परफेक्ट कंपटीशन आपको ये बताएगा कि इंटरेस्ट रेट क्या है, डिमांड और सप्लाई ऑफ कैपिटल से क्या कर रहा है? डिटरमिन हो रहा है। तो और इंटरेस्ट रेट क्या है? फ्लेक्सिबल है, मतलब जहाँ डिमांड और जहाँ सप्लाई मेल खा जाएंगी वहीं पे इंटरेस्ट रेट हमारा आ जाएगा, अब चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, ठीक है। फिर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट क्या बता रहा है कि पीपल्स की इनकम जो है और आउटपुट और इनकम चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है फुल एम्प्लॉयमेंट में। तो इंटरेस्ट रेट में केवल किससे फ़र्क आ रहा है? केवल हमारे सेविंग में किससे फ़र्क आ रहा है? केवल हमारे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से, ठीक है। सेविंग या इन्वेस्टमेंट में, दोनों तरीके से आप देखें तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कौन इफेक्ट कर रहा है? ओनली इंटरेस्ट रेट। आपका चेंज इन इनकम और चेंज इन आउटपुट अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब थर्ड हमारा है, अच्छा, तो तीसरा हमारा इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं दे एक्ट रेशनली। इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन से होंगे? अब देखो, क्लास इंटरेस्ट की थ्योरी पढ़ रहा हूँ तो इंटरेस्ट की थ्योरी में हम किसकी बात करेंगे? एक तो सेवर्स की जो सेव कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या होने चाहिए? रेशनल होने चाहिए, मतलब बुद्धिमान होने चाहिए, ऐसे कुछ भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, है ना। तो एक रेशनल पर्सन क्या करेगा? कंपेयर करेगा अपने कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को और रिस्पॉन्ड करेगा प्राइस सिग्नल्स को। अभी हम ये देखेंगे, है ना, इंटरेस्ट रेट सिग्नल्स को, और मैक्सिमाइज करना चाहेगा अपना गेन। कंज्यूमर्स मैक्सिमाइज करना चाहेंगे अपनी यूटिलिटी, इन्वेस्टर्स मैक्सिमाइज करना चाहेंगे प्रॉफिट, और सेवर्स मैक्सिमाइज करना चाहेंगे अपनी सेविंग इनकम या फिर इंटरेस्ट रेट इनकम, ठीक है, जो इनकम उन्हें सेविंग करने से मिलती हो, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ सेवर्स और इन्वेस्टर्स की आप बात करो। फिर अब रेशनैलिटी अगर हम सेविंग बिहेवियर में देखें तो देखो, अगर लोग समझदार हैं तो उन लोग क्या बताएंगे कि अंडरस्टैंड करेंगे कि हायर इंटरेस्ट मतलब हायर रिवॉर्ड, है ना। तो इंटरेस्ट रेट जब हाई होगा तो उन लोग उनकी कंजम्पशन को, प्रेजेंट कंजम्पशन को कम कर लेंगे, है ना, और सेविंग खुद से बढ़ जाएगी, है ना। अब अगर ऐसा नहीं होता, रेशनल नहीं होता, तो उन लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते इंटरेस्ट रेट सिग्नल्स को। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता तो भी बढ़ाते, कम होता तो भी बढ़ाते। तो ये जो सेविंग कर्व है इसमें स्लोप नहीं आता अपवर्ड। अब रेशनैलिटी क्यों ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में? इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं लोग? कंपेयर करते हैं लोग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और इंटरेस्ट रेट का। जब तक एमपीसी ग्रेटर देन या इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब बेनिफिट और कॉस्ट बराबर हैं या बेनिफिट ज़्यादा है, तब तक ही फर्म्स क्या करेंगी? इन्वेस्टमेंट की डिमांड करेंगी, मतलब कैपिटल की डिमांड करेंगी। और जब ये बढ़ जाए, अब इन सब चीज़ों के लिए बहुत आपको लॉजिकल कैलकुलेशन, कंपैरिजन सब लगता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं, एजम्पशन लेते हैं कि क्या हमारा जो इकोनॉमिक एजेंट है वो रेशनली एक्ट करते हैं, मतलब कि हायर इंटरेस्ट जब होगा तो लोग सेव ज़्यादा करेंगे और इन्वेस्ट कम करेंगे, और लो इंटरेस्ट रहेगा तो लोग सेव कम करेंगे और इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, और ऐसे मार्केट इक्विलिब्रियम में बना रहेगा, ठीक है। Now comes the fourth assumption, that is constant price level. अब देखो, हमने पढ़ा कि हमारे जो ये क्लासिकल थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी है? रियल थ्योरी है, और इसमें नॉमिनल वैल्यूज़ जैसे कि प्राइस लेवल, मनी वाला सेक्टर जितना भी है आपका, ये हम करते हैं कि क्या है, ये कांस्टेंट है, या हम समझते हैं क्या मनी क्या है? न्यूट्रल। मनी न्यूट्रल है, मतलब ओनली एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना, और स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, ताकि क्या रख सके हम? इंटरेस्ट को रियल चीज़ों में रख सकें, मतलब रियल फैक्टर्स से डिटरमाइन कर सकें, तो इसलिए हमें प्राइसेस को रखना पड़ता है स्टेबल, ठीक है। अब मनी वेरिएबल, अब प्राइस चेंज होएगा तो क्या होएगा? हम प्राइस, कांस्टेंट प्राइस की बात कर रहे हैं। अगर प्राइस चेंज हो गया तो मनी वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। मान लो प्राइस चेंज हो गया 10 से 20, तो मनी वेरिएबल्स चेंज हुए कि नहीं? तो नॉमिनल वैल्यूज हो गए चेंज, है ना, और ये कर देंगे आउटकम को इफेक्ट, ठीक है। और इंटरेस्ट
क्या बन जाएगा, मॉनेटरी बन जाएगा। तो ये मॉनेटरी इफेक्ट नहीं चाहते थे और चाहते थे क्लासिकल वाले लोग कि हम रियल सेक्टर में बस बात करें, इसलिए हमने मॉनेटरी सेक्टर विच इज़ प्राइस लेवल और मनी सप्लाई को क्या रखा, कॉन्स्टेंट रखा। ठीक है, अब सुनो बात, अगर अब मान लो प्राइस लेवल चेंज होके बढ़ जाते, अब बढ़ जाते मतलब इन्फ्लेशन आ जाएगा, इन्फ्लेशन आएगा तो क्या होएगा, प्राइस राइज हो जाएंगे, मतलब क्या होएगा कि बोरोअर्स को क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, जो लोगों ने उधारी ली है उन्हें फ़ायदा हो जाएगा, है ना। मान लो उन्होंने क्या लिया, 10 रुपये लिए थे, अब जो 10 रुपये हैं और लैंडर्स को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और अगर प्राइस फॉल कर गए मतलब डिफ्लेशन हो गया, तो लैंडर्स को क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, और बोरोअर्स को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो क्लासिकल थ्योरी ये नहीं चाहती कि प्राइस लेवल से क्या है, हमारे डिफरेंसेस आए, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या जो सेविंग इन्वेस्टमेंट है वो किसी और चीज़ से नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट से इससे डिटरमाइन होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कांस्टेंट प्राइस को क्या लिया, एजम्पशन लिया। ठीक है ना। एक बात तो हो गई अपने ये कि क्या बात अभी हमने पढ़ी कि कांस्टेंट प्राइस लेवल से क्या होएगा, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी जो इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा। फिर सेकंड बात आप ये मानो कि आप अगर देखो प्राइस लेवल चेंज होता है तो इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, या फिर डिमांड एंड सप्लाई जो है कैपिटल की, वो मनी इल्यूजन से अफेक्ट होने लगेगी, इंटरेस्ट से नहीं। देखो पूरे जो एजम्पशंस हैं ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिर्फ डिटरमाइन हो सके, मतलब जो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ कैपिटल है या फिर जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ डिटरमाइन हो सके रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इसलिए हमने लिया फुल एम्प्लॉयमेंट ऑब्जर्वेशन। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होएगा, इनकम लेवल क्या होगी, कांस्टेंट। इसलिए हमने लिया परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होएगा कि इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल होंगे। इसलिए हमने लिया इकोनॉमिक एजेंट्स जो है रेशनली एक्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन लोग क्या एक्ट करेंगे, इंटरेस्ट रेट से एक्ट करेंगे, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा घटेगा तब इन लोगों को फ़र्क पड़ेगा। और कांस्टेंट प्राइस लेवल क्यों ले रहे हैं हम, ताकि प्राइस लेवल का चेंज जो हमारे डिमांड और सप्लाई ऑफ कैपिटल में चेंज ना डाले। ठीक है, और इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी प्रेशर ना लगे हमारे उसमें, किसमें, डिमांड और कैपिटल सप्लाई में। अब फिफ्थ हमारा है मनी इज़ न्यूट्रल एंड सर्व्स ओनली एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड नॉट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये भी हमारा कौन सा फैक्टर है, हमारा कहना चाहिए आपको न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, मतलब आपका नॉमिनल जो फैक्टर्स होते हैं वो उसको वो कर दिया, है ना। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी क्या कहेगा कि मनी न्यूट्रल है। मनी न्यूट्रल का मतलब है कि इट डज नॉट अफेक्ट रियल वेरिएबल्स, है ना। इट इज़ नॉट अफेक्टिंग दी रियल वेरिएबल्स। रियल वेरिएबल्स जैसे कि हमारा इनकम और एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि हमने क्लासिकल थ्योरी में भी पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो उस वीडियो में जाओ और बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। ठीक है, उसमें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से हम बताते हैं, है ना, कि मनी न्यूट्रल रहेगा तो वो आउटपुट को बढ़ा नहीं सकेगा, क्योंकि आउटपुट तो वैसे भी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रहे हैं, है ना। और मनी न्यूट्रल है तो वो इंटरेस्ट रेट में भी कोई फ़र्क नहीं डाल पाएगा। समझ में आ रही बात, सिर्फ वो प्राइस लेवल को बढ़ा चढ़ा सकता है, और प्राइस लेवल भी हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, ये है।